ओके सो पिछली से पिछली वीडियो में आई टॉक्ड अबाउट हाउ वी विटनेस अ चेंज इन आवर एटीट्यूड थ्रू द टू स्टेप कॉन्सेप्ट. नाउ दिस वीडियो इज अबाउट अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस. सो इफ यू आर एक्टिव ऑन यूट्यूब, ये बात तुमने भी नोटिस करी होगी कि देयर इज अ होल न्यू वेव अगेंस्ट बिग यूट्यूबर्स लाइक ट्रिगर्ड इंसान, मोस्टली सेन, कैरी मिनाटी एंड सो ऑन. एंड दिस सेंटिमेंट इज प्रिवेलेंट मोस्टली इन पीपल जो कि व्हाट दे कॉल सेकंड जेन यूट्यूबर्स को देखते हैं. Although I personally don't call them that. So let's learn psychology by Simon Says and Mango Boy. एक चीज जरूर ध्यान रखना, I in no way mean कि Simon Says या Mango Boy गलत हैं. Neither I mean they are using this concept intentionally. मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उनको ये कॉन्सेप्ट पता था तो उन्होंने तुम्हें इन्फ्लुएंस किया with the help of this concept. बल्कि उन्होंने एक सिंपल बिहेवियर किया एंड मैं उस बिहेवियर और उसके इम्पैक्ट को इस थ्योरी से एक्सप्लेन करने वाला हूँ. So a quick disclaimer, this video is not about कि क्या सही है और क्या गलत है. Rather, it is only about observing what has happened through a psychological perspective. So learn what is useful, discard what is not. सो अगेन एटीट्यूड चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रोसेस दैट इज टू स्टेप कॉन्सेप्ट बाय एस.एम. मोहसिन मैं अपनी पिछली से पिछली वीडियो में ही बता चुका हूँ. दी POX ट्राइंगल दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस बाय हाइडर इज अनदर प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड चेंज. ये प्रोसेस काम करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी. व्हाट डू आई मीन बाय कंसिस्टेंसी? बेसिकली हम ह्यूमन बींग्स की एक टेंडेंसी होती है टू बी कंसिस्टेंट, बी इट आवर बिलीव्स, एटीट्यूड्स और एनी बिहेवियर we do. And this is quite logical. जैसे अगर कोई चिड़िया दल को सपोर्ट करता है, he or she will be very resistant to a change. Although the concept of balance में मेरा consistent होने से मतलब कुछ और है, let me explain. अगेन पिछली वीडियो की तरह इसे डायरेक्टली एक एग्जाम्पल से समझते हैं. A. Antu likes smoking, but Pintu hates to smoke. What do you think? ये दोनों दोस्त बन पाएंगे? B. Antu loves smoking, and even Pintu does love smoking. क्या अब ये दोस्त बन पाएंगे? कौन से केस में अंटू एंड पिंटू के चांसेस आर हायर टू बी फ्रेंड्स? केस बी राइट, बिकॉज केस बी में दोनों को ही स्मोकिंग पसंद है. टेक अनदर एग्जाम्पल. Antu loves expression and hence he wants a grand wedding. मतलब a loud party, his friends and a full happening function. His crush Smriti on the other hand hates a grand wedding. उसको तो बस एक सिंपल सी कोर्ट मैरिज करनी है. What would happen next? A. Antu will agree for a court marriage. Or B. Smriti will agree for a grand wedding. Or C. शादी होगी ही नहीं. ये सब हुआ क्या? Let me explain. This is a POX triangle. P represents person A, O represents person B or the other person, and X represents the attitude object यानी topic या फिर वो कोई third person भी हो सकता है. The relationship between these three is called a triad. Now the concept of balance states that we as human beings want to be consistent. Any inconsistency, be it our beliefs, attitudes or behaviors will cause a mental discomfort. And this mental discomfort drives us to be consistent. बेसिकली इसका मतलब है दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होगा एंड दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन होगा. इसे अच्छे से समझो. लेट्स टेक दी वेडिंग वाला एग्जाम्पल. इन दी POX ट्राइंगल, P is Antu, O is Smriti and X, that is the attitude object, is grand wedding. Now the relation between P and O, that is Antu and Smriti, is positive. The relation between P and X, that is Antu and grand wedding, is also positive. But the relation between O and X, that is Smriti and grand wedding, is negative. So the result is पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव. अब इस टेबल को देखो. इसमें अकॉर्डिंग टू द एटीट्यूड बिटवीन PO, PX एंड OX दो स्टेट्स बताई गई हैं. ईदर अ स्टेट ऑफ बैलेंस or a state of imbalance. Now what the concept of balance says is कि we always tend to move towards a state of balance. Why? Because again we want to be consistent and state of imbalance में होने से हमें kind of discomfort सा feel होता है. अब मेरी बात को ध्यान से सुनो. Positive, positive, negative. This is a state of imbalance. मतलब यहाँ गड़बड़ है. अब according to the concept of balance हमें एक state of balance तो achieve करनी ही पड़ेगी. So coming back to what would happen next.
ए अनटू कोर्ट मैरिज के लिए मान जाता है, which also implies कि अब the relation between unto and grand wedding is negative. We get negative, positive, negative, and it is a state of balance. Or B, Smriti agrees for a grand wedding, so OX attitude object becomes positive. So the relation between O and X becomes positive. We get positive, 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 and again it is a state of balance. Or it can be C, शादी होगी ही नहीं. That is, the relation between P and O becomes negative. Now we get a negative, positive, negative. And again, we achieve a state of balance. And this is the concept of balance. Simply P and O की जगह दो इंसान लो and X की जगह कोई टॉपिक लो. And वो टॉपिक कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है. Now define their respective attitudes and apply the concept. But अब तुम इतनी सारी states को याद कैसे रखोगे? मत रखो, just remember one thing. मैथ्स में पढ़ा था ना, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव. बस अब जो भी स्टेट इज ट्रू बाय दिस फॉर्मूला वो एक स्टेट ऑफ बैलेंस है एंड बाकी सब स्टेट ऑफ इम्बैलेंस है. नाउ बिफोर आई आंसर द रियल क्वेश्चन अबाउट द एटीट्यूड चेंज ऑफ पीपल टुवर्ड्स द पॉपुलर यूट्यूबर्स, एक इम्पोर्टेंट बात, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते टाइम वी आर इग्नोरिंग ऑल अदर एस्पेक्ट्स लाइक एनवायरमेंट एंड ऑल. इवन हम इंसान भी बस 3 ही ले रहे हैं, जबकि रियलिटी में इट इज मच मोर डायनामिक. For example, Unto loves smoking, but Pintu hates smoking. So according to the concept of balance, इन दोनों में दोस्ती नहीं हो सकती. But what if Unto loves reading and even Pintu loves reading? अब तो दोस्ती होनी ही चाहिए ना, पर अगर हम एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को स्मोकिंग ले लें तो दोस्ती नहीं होगी. सो ये चल क्या रहा है, दोस्ती होगी या नहीं होगी? The answer is it depends. It depends कि इन दोनों के लिए स्मोकिंग वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर रीडिंग. बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सट्रीमनेस ऑफ द एटीट्यूड. तुम पॉइंट समझो. दिस कॉन्सेप्ट वर्क्स विद आइसोलेटिंग ऑल अदर इन्फ्लुएंसेस. तो फिर क्या ये फालतू है? नहीं, बिल्कुल नहीं. सी, टू अंडरस्टैंड अ डायनेमिक रिलेशन हमें पहले उसके कंपोनेंट्स को आइसोलेट करके स्टडी करना होता है. सो दिस कॉन्सेप्ट डज work. Let me show you with the example of Simon Says, Mango Boy and the audience. Let P is equal to Simon Says or Mango Boy, O is equal to the audience and X का मतलब है popular creators. पहले क्या था? The relation between O and X, that is the audience and popular creators, was positive. And कोई third component था ही नहीं, तो इनका relation positive ही रहा. पर फिर हुआ क्या? एक third component जो कि है P, यानी the second gen creators came into the picture. अब देखो हुआ क्या? The relation OX was positive, मतलब the relation between the audience and the popular creators was positive. Simon Says and Mango Boy आते हैं and popular creators, that is PX को criticize करते हैं. Basically, PX gets negative. So for a state of balance, if the first two signs are positive and negative, the third should be negative. थर्ड क्या है? The relation between creators like Simon Says or Mango Boy and the audience. Basically attitude object PO. तो इन दोनों का relation that is PO हुआ negative. And ये concept hate comments को भी explain करता है. Since OX was positive and PX was negative, तो PO को negative होना ही था. मतलब audience को popular creators पसंद थे. But creators like Simon Says और Mango Boy criticized popular creators. तो अब the relation between Simon Says and the audience negative होना ही था. अब थोड़ा आगे चलते हैं. धीरे धीरे एक शिफ्ट आया and audience started liking creators like Simon Says and Mango Boy. That is PO attitude object became positive. So we get a positive, negative, positive. और ये एक state of imbalance है. सो चेंज तो होना ही था. या तो ऑडियंस साइमन को देखना बंद कर देती या साइमन कैरी को क्रिटिसाइज करना बंद कर देता. बट इन दोनों में से तो कुछ हुआ नहीं. बट यस, ऑडियंस पॉपुलर क्रिएटर्स से दूर जरूर होती गई. एंड हेंस OX एटीट्यूड ऑब्जेक्ट बिकेम नेगेटिव. Finally, we got a positive, negative, negative.
स्टेट ऑफ बैलेंस अचीव्ड। अब तुम ये कह सकते हो कि मैं तो दोनों को देखता हूँ। ओके, आई एग्री, बट व्हाट इफ साइमन वर्सेस कैरी हो जाता है, लाइक जैसे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक वाले ड्रामा में हुआ था, वो हो जाता है। ऐसे में हो सकता है तुम्हारा एटीट्यूड एक्सट्रीम ना हो, मतलब मे बी तुम किसी को हेट ना करो, बट तुम इन दोनों में से किसी की थोड़ी साइड तो जरूर लोगे। एंड अगर तुम फिर भी कहते हो कि मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल ऐसा भी पॉसिबल है, बिकॉज इन 3 रिलेशंस के अलावा भी द सिचुएशन इज मच मोर डायनामिक। बट इन जनरल whatever I explained is true. So इस कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने पॉपुलर क्रिएटर्स के अगेंस्ट जो वेव है उसको तो एक्सप्लेन किया ही, बट आई ऑल्सो एक्सप्लेन दी साइकोलॉजी बिहाइंड हेट कॉमेंट्स। बट वो बस एक एक्सप्लेनेशन था, एंड आई हैव अ बेटर वन, which obviously we'll discuss in the next video.